بستر کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ اچھے انسان کو بھی خراب کر دیتی ہے، اور ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میری شادی ہونے والی تھی، اور جب بھی میری شادی کی بات چیت گھر پر اٹھتی تو فوراً مجھے سہاگرات کی یاد آ جاتی اور میرے جذبات ابھرنے لگتے تھے۔ میں بہت کنٹرول کرتی اپنے آپ کو تاکہ کسی کے آگے میرے جذبات ظاہر نہ ہو جائے، اور جیسے تیسے کر کے میری شادی کا دن بھی آ گیا تھا، جس کے لیے میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرے لیے ہی اتارا ہوگا، لیکن شادی کی رات ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ شوہر کو مجھ میں دلچسپی ہی نہیں ہے، لیکن میں کیسے اپنا حق چھوڑ سکتی تھی؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن انتظار کیا تھا؟ اب کسی بھی صورت میں مجھے ہی کچھ کرنا تھا، تو میں نے لال ساڑی پہن رکھی تھی اور شوہر کے جسم پر اپنی انگلیاں چلا رہی تھی، اور میں بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب جا کر میں نے شوہر کے اوپر بیٹھ کر بڑی زور سے، مجھے ہر حال میں اپنا حق چاہیے تھا، تو میں نے اپنے شوہر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ میرا حق تھا جو ہر عورت کا حق ہوتا ہے۔ اس بات پر میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں بحث ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے چلا کر ایک نام سے پکارا۔ جب میں نے اس عجیب سے نام کو سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کیا میں اس کے لیے اتنی گری ہوئی تھی کہ میرے شوہر نے اس نام سے مجھے پکارا تھا؟ کیا میں اتنی گھٹیا عورت تھی کہ میرے شوہر نے اس نام سے مجھے پکارا تھا؟ یہ سننا تھا کہ میری زبان میں تالا لگ چکا تھا، میں اپنے شوہر کے آگے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اب اپنے شوہر سے بیزار ہو گئی تھی۔ اتنا سننے کے بعد ہر عورت کا دل تو یہی کہے گا نا۔ میں نے تو آج فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کرتے رہوں گی، لیکن میرے شوہر کی اس باتوں نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر زور زور سے رونے لگی، اور بار بار مجھے اس کے منہ سے جو نام نکلا تھا وہی سب یاد کر کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جو لفظ اس نے مجھے کہا تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم تو بستر کی۔ میری ماں نے بہت خواہش سے میرا نام رکھا تھا۔ میرا نام علیزہ ہے، اور میں بلا کی حسین تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر میری ماں نے میرا نام یہ رکھ دیا تھا، لیکن ہم بہت ہی غریب لوگ تھے۔ میری ماں کو سبھی لوگ یہی مشورہ دیتے تھے کہ تو نے تو اپنی چاروں بیٹیوں کو ادھر ادھر بیا دیا ہے، اب اتنی خوبصورت لڑکی کو اچھی جگہ دیکھ کر بیا نا۔ تیری تو بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ جو کوئی بھی دیکھے گا اڑا کے لے جائے گا۔ میری ماں کہنے لگتی ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم غریب لوگوں کے گھروں میں کون سے اچھے رشتے آ جائیں گے جو اسے اچھی جگہ پر بیا دو۔ غریبوں کے گھر پہ تو کوئی جھانک کر بھی نہیں دیکھے گا، تو کہاں سے اچھے رشتے آئیں گے؟ غریبوں کے لیے غریب کا ہی رشتہ ملے گا۔ تو پڑوس والے کہنے لگے کہ پاگل عورت، جب خوبصورت لڑکی ہو تو آگے والا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ غریب ہے یا امیر، بس لڑکی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو بہت بڑے بڑے امیر گھروں میں سے رشتے آتے ہیں۔ بس یہ ایک بات دماغ میں رکھ لے کہ ایک چیز پانے کے لیے ایک چیز کھونی پڑتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں چپ کر ہی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی میری ماں نے کہا کہ کیا پانے کے لیے کیا کھونا پڑے گا؟ تو کہنے لگے کہ لڑکا عمر بڑا ہوا تو اس میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لڑکا لڑکی سے بڑی عمر کا ہو گئے تو اسے ہی سمجھوتا کرنا چاہیے، یا پھر دوسرے بیوی بننا پڑتا ہے۔ پھر میری ماں نے جھٹ سے بولا کہ میرے شوہر وہ تو مجھ سے 6 یا 7 سال بڑے ہیں، عمر بڑی ہونے میں اتنی برائی نہیں ہے، ہم بھی تو یہ رشتہ نبھا رہے ہیں، لیکن کسی کی سوتن بننا اس میں تو بہت برائی ہے۔ ارے سوتن تو جینا حرام کر دیتی ہے۔ ارے تم غلط سمجھ رہی ہو، لڑکی اتنی خوبصورت ہو تو سوتن کی کیا مجال کہ اس کا جینا حرام کر دے؟ لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی مرد اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اس میں سوتن کیا کر سکتی ہے؟ اسے تو بس انگلیاں چلنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، بس صرف تماشا دیکھتے رہ جاتی ہے۔ اگر خوبصورت لڑکی ہو تو ایسے ایسے ناز نہ کر اٹھائے جاتے ہیں کہ پوچھو مت۔ اب لڑکیاں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ چاہے بوڑھا بھی ہو تو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اگر پیسہ نہیں تو وہ جان جوان کو بھی شادی کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنی اس سے شادی جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، ہم تو بس اس سے شادی کریں گے جس کے پاس پیسہ ہو، چاہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ کیوں نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس بڑے مشکل سے ہی ایسا رشتہ ملتا ہے۔ بس وہ خالہ یہی سب باتیں میری ماں کے دماغ میں ڈال چکی تھی۔ اب میری ماں اب ایک سب باتوں کو سوچنے لگی تھی، یہ سب باتوں کو لے کر سوچ رہی تھی کہ کاش میں باقی بیٹیوں کے بھی ایسے ہی رشتے کرتی
तो आज वो अच्छी जिंदगी जीते और ना ही ऐसी गुर्बत वाली जिंदगी जीते। और मेरी माँ को अच्छी तरह से समझ आ गया था, वो जो खाला मेरी माँ के दिमाग में ये सब बातें डाल के गई थी, तो ऐसी बातों को सोचकर ही मेरी माँ को ये फैसला कर सकती थी। अब मैं ये सब बातों को सुनकर मैं सोचने लगी कि मेरी किस्मत तो बुरी है। एक अच्छी जगह से रिश्ता आया था जो कि मुझे किसी की दूसरी बीवी बनना था, और मैं जिसकी दूसरी बीवी बनने जा रही थी उसका नाम जयान है। और इसकी पहली बीवी जब मैंने देखी तो मैं हैरान रह गई। मुझे इसकी पहली बीवी कभी भी नजर न आती, ना ही मुझे कोई दिखाता, लेकिन वो मुझे बाजार में नजर आ गई और मेरी दोस्त ने मुझे बता दिया कि ये इसकी बीवी दुकान में खड़ी थी, इसी मोहल्ले में रहती है। जब मैंने इसे देखा तो मैं हैरान रह गई। वो इतनी मोटी थी, इसका रंग भी सांवला था और नाक भी चपटी थी। मेरे नक्श बिल्कुल भी प्यारे नहीं थे। मैंने दिल में सोच लिया कि इसका मतलब कि वो आदमी हुस्न फरोख्त है और दूसरी शादी खूबसूरत बीवी से करना चाहता है। मेरी दोस्त ने कहा कि फिर तो तेरे नंबर पूरे हैं, तो बड़ी खुश रहेगी। मुझे सबने यही कहा कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है और मेरी शादी करवा दी गई। मैं अपनी शादी पे क्या खूबसूरत लग रही थी। मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो दिल किया कि अपनी ही बनाए ले लूं। बहुत ही प्यारी लग रही थी। दुल्हन बन के तो हर लड़की के चेहरे पर ही एक अलग सा नूर आ जाता है, तो फिर मैं तो पहले ही इतनी खूबसूरत थी कि सिर्फ लाल लिपस्टिक लगा लेती तो सबका बेड़ा गर्क हो जाता था। ऐसे में जब मैंने अपने आप को 16 श्रृंगार से लेस किया तो फिर सोचें कि मैं क्या खयामत लग रही हूँ। मेरी माँ ने कहा कि मुँह दिखाई में कोई तगड़ा तोहफा लेना और जाते ही कह देना कि घर के काम नहीं होते, नौकरानी रख दे, बस ये 2 मामले तेरे ठीक हो जाएंगे, फिर तेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अरे बड़ा अमीर आदमी है, कपड़े की फैक्ट्री है इसकी, कल को तेरी मुट्ठी में रहेगा तो बाकी बहनों की भी मदद हो जाएगी। देख तेरी 2 बहनें ही बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं है इनके पास, तो अपने शौहर के साथ अच्छी रहेगी तो वो तेरे बहनियों को अपनी फैक्ट्री में कहीं काम वगैरह दिलवा देगा, तेरी बहनों का भी घर सेट हो जाएगा। मेरी माँ ने मेरे कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां की गठरी रख दी और मुझे घर से रुखसत कर दिया। मेरा बाप तो पहले ही इस दुनिया में नहीं था, हमारा कोई भाई भी नहीं था। हम लोग घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और मेरी माँ कपड़े सिया करती थी और इसी तरह से गुजारा होता था। अगर मेरे शौहर की बात की जाए तो वो एक मुनासिब शक्ल का आदमी था। इसकी उम्र भी इसकी पहली बीवी जितनी ही थी, वो मुझसे उम्र में भी ज्यादा था और ये इसकी दूसरी शादी भी थी, लेकिन इसकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लगता था कि जैसे इसके साथ वक्त ही नहीं गुजरेगा। बस एक नॉर्मल सा मर्द था, जैसे कि मर्द होता है। 40 के करीब तो होगी इसकी उम्र। मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया और मैं बहुत खुश थी। इस कमरे में सब कुछ नया था, पर्दे, बेड, बिस्तर, कपड़े, अलमारी भी थी, तो जाहिर है अलमारी खाली भी नहीं होगी, अंदर जरूर कुछ न कुछ होगा। लेकिन अभी मैं दुल्हन बनी बैठी थी, अभी मैं उठ के देख नहीं सकती थी कि अलमारी में क्या है। मुख्तसर ये कि खुशी हो रही थी मुझे, मैं परेशान नहीं हुई। मुझे मेरी कजिन, मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी खाला सब ने मिलकर यही समझाया था कि रिश्ता अच्छी जगह हो गया, मर्द तेरा दीवाना होगा, तेरा बहुत ख्याल रखेगा और मेरी जिंदगी में कोई था भी नहीं। सच बात बताऊं तो मुझे शादी करने का बहुत शौक था। मेरा दिल करता था कि मेरा कोई शौहर हो जो मेरा ख्याल करे, जिसके साथ मैं रहूं, मैं इसके लिए खाना बनाऊं, वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, हमारी गाड़ी हो, इसकी भी गाड़ी थी, हम लोग एक साथ रहे, प्यार मोहब्बत भरी बातें करें, फिर अल्लाह हमें औलाद दे। मतलब वही छोटे छोटे ख्वाब जो हम जैसी लड़कों के होते हैं। हमें कोई दुनिया पता नहीं करनी होती, हमें सिर्फ एक शख्स का दिल ही जीतना होता है, और वो भी अपना शौहर। और अपने शौहर के बारे में ऐसा सोचना कोई अनोखी बात नहीं, हर लड़की के दिल में यही अरमान होता है। मकसद ये है कि मेरे दिल में लड्डू फूक रहे थे और ये हलाल लड्डू थे। मुझे ये सब सोचने का हक था, लेकिन बड़ी देर हो गई। मेरा शौहर मेरे कमरे में ही नहीं आ रहा था। हम लोग तो शाम के वक्त की रुखसतें लेकर आ गए थे। मेरी शादी कोई बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी। लड़के ने कहा था कि इसकी दूसरी शादी और इसकी पहली बीवी भी शादी में शरीक थी। इसकी पहली बीवी का नाम अस्मा था, अपना नाम की तरह ही थी, पुरानी सी औरत थी। हम लोग इस घर में तकरीबन 6:30 बजे आ गए थे और अभी तो 11 बजने वाले थे। अब इतना तो वक्त हो गया था, इसे अपने कमरे में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। जब वो लोग वहाँ पे आए तो इनके साथ एक नौकरानी भी थी। वहीं दरवाजे के पास से गुजरी तो मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर आ गया। थोड़ी देर के बाद वो अंदर आ गई। उसने कहा कि हाय मेरी अकल बीवी जी, मुझे बड़े साहब ने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि आज वो आपके कमरे में नहीं आएंगे।
आप कपड़े बदल के सो जाए। उन्होंने मुझे 2 घंटे पहले कहा था, लेकिन मैं घर के कामों में लगी हुई थी, इसलिए मैं भूल गई। मुझे माफ कर दें और बड़े साहब को ये बात न बताना। मैंने कहा कि नहीं बताऊंगी, लेकिन वो क्यों नहीं आएंगे मेरे कमरे में? आज तो हमारी शादी हुई है। तो कहने लगी कि ये तो बड़े साहब का हुक्म है। हम तो गरीब लोग हैं, हमें क्या पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन मुझे आपको पहले बताना चाहिए था। आप कब से इंतजार कर रहे हैं। आप कपड़े बदल लें। अलमारी में आपके लिए बहुत सारे कपड़े और सामान पड़ा हुआ है। और कुछ खाना है या चाय पीनी है तो मुझे बता दें। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं खाना। तो जाओ यहाँ से। वो चली गई। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं अभी इस शख्स से मिली भी नहीं थी, मैंने इससे ठीक से बात भी नहीं की थी, लेकिन मुझे फिर भी बुरा लगा। ये क्या बात हुई? अगर मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? आज तो हमारी शादी की रात थी। ये रात तो बड़ी यादगार होती है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना मेकअप उतारना शुरू किया। कपड़े बदल के बिस्तर पर बैठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जगह बदल गई थी, लेकिन अब तक ये मेरा घर था। मेरे दिमाग में वही टिपिकल सी बात आई कि शायद इसके पहले बीवी ने इसे रोक लिया होगा, क्योंकि शादी होने से तो वो रोक नहीं सकी और अब इस तरह की हरकतें करके अपना बदला पूरा करना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कब तक वो रोक सकती थी। सुबह हुई तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर नाश्ता मेरे साथ ही करेगा और हम लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। ये भी एक अच्छा लम्हा होगा। मैं लम्हों को जीने वाली औरत थी। औरतें होती ही लम्हों को जीने वाली है। सुबह बाहर आई तो टेबल पर किसी का नाश्ता भी लगा हुआ था। मैं खुश हुई कि नाश्ता पहले से तैयार है, लेकिन मेरा शौहर कहीं नजर नहीं आ रहा था। नौकरानी ने कहा कि बैठे। मैंने नाश्ते की तरफ देखा तो मालूम होता था कि एक ही इंसान के लिए नाश्ता है। एक प्लेट थी, एक चाय का कप था, बाकी चीजें बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा कि बड़े साहब कहाँ है? तो कहने लगे कि वो तो बड़ी बेगम के साथ जरा बाहर गए हैं। वो बड़ी बेगम की एक कजिन है ना, उनकी छोटी बेटी को अचानक से कोई मसला बन गया तो वो वहाँ पहुँच गए। आप नाश्ता कर ले। उन्होंने कहा था कि नाश्ता आपने जरूर करना है। मेरा दिल एक बार फिर से टूट गया। मैंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत खा लिया था क्योंकि रात को खाना भी नहीं खाया था। इसके बाद इधर उधर फिरती रही। कभी घर को देखती थी, कभी आसपास देखती थी। मैं इस नतीजे पे पहुंची कि इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ औलाद की। ये कमरे में गई तो हैरान रह गई। शायद मुझे इस कमरे में नहीं आना चाहिए था। ये शायद अस्मा का बेडरूम था। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही नया और खूबसूरत था और दीवार पर इनकी शादी की तस्वीर भी लगी हुई थी। जब इस औरत की शादी हुई है तब भी तकरीबन देखने में ऐसी ही लगती थी। ऐसा नहीं था कि शादी के बाद ऐसी हो गई। और सुनने में आया था कि इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, यानी जब शादी हुई होगी तो ये 26-27 साल की तो होगी ही। खैर मैं तो अभी इससे भी ज्यादा जवान थी और मेरी शादी हो गई थी। मैं इस कमरे से जल्दी बाहर निकल गई, लेकिन मैंने एक नजर सिंघार में इसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें जो दिखा गई। औरतें यही सब कुछ देखती हैं। सिंघार में इसके ऐसे ऐसे मेकअप के सामान पर फेस वॉश पता नहीं क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ था। इसका मतलब कि यह खूब नकदी उठाती थी और ये मर्द भी सफर उठाने वालों में से था, जो कि अच्छी बात थी। अगर पहली बीवी को इतनी नकलें उठाता था तो वो भी शादी के 10 साल बाद, तो फिर मेरी नकलें उठाना तो इस पर वाजिब हो गया था। मैंने अलमारी को रात को खोला था, लेकिन ठीक से देखा नहीं था। जब अलमारी में देखा तो इतने ज्यादा कपड़े नहीं थे, बस वही 4-5 मौसम के मुनासिबत से कपड़े थे। 2-3 कामदार थे और इनके साथ के जूते थे जो गिले भी नहीं थे। और कॉस्मेटिक के नाम पे सिर्फ एक शैम्पू, कंडीशनर और साबुन ही पड़ा था। मैं हैरान हुई कि पहले बीवी के लिए इतना कुछ और मैं नई नई दुल्हन, और मेरे लिए उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। खैर सोचा कि बाद में ले लूंगी। वो लोग शाम को वापस आए। मैंने दोपहर का खाना भी किचन में बैठ के ही खाया था, वो भी बहुत ही थोड़ा सा। रात हुई तो मैं फिर से अपने आप को तैयार करने लगी। मैंने मुंह हाथ धोया, बाल ठीक किए, थोड़ा परफ्यूम लगाया, क्योंकि देखा जाए तो आज हमारी शादी की रात थी। कल का दिन तो गुजर गया था, आज ही हम दोनों ने दूसरे को देखना था और मुंह दिखाई की रस्म भी तो देती थी। पता नहीं ये मेरे शौहर ने मुझे मुंह दिखाई में क्या देना था। ये जो नौकरानी थी ये बहुत ज्यादा बातें करती थी। इसने मुझे बातों में बताया था कि जब बड़े साहब की शादी हुई थी नजमा बेबी के साथ, तो उन्होंने मुंह दिखाई में सोने का सेट दिया था। वो भी बहुत ही बड़ा और भारी था। अभी भी इनके पास है, कभी कभी पहनती है तो कहती है कि मैं थक गई हूँ। अब आजकल के जमाने तो और है, और अब तो बड़े साहब का काम भी बहुत अच्छा है
आपको तो लगता है कि हीरे का सेट देंगे, लेकिन आज फिर वक्त गुजरता जा रहा था और मेरा शौहर मेरे कमरे में नहीं आ रहा था और वो मेरे कमरे में नहीं आया। मैं बैठे बैठे सो गई। मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आज तो मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया कि इसने कमरे में नहीं आना। सुबह नाश्ते के टेबल पे मेरा सामना हो गया। इसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैं घर में आई हुई कोई मेहमान हो। वहाँ पे नजमा भी बैठी थी। मैंने सलाम किया, इन दोनों ने जवाब दिया और कहा कि आओ बैठो, नाश्ता कर लो। ज़यान पहले से ही अखबार की तरफ मुतवज्जा था और अस्मा ब्रेड पर मक्खन लगा के उसको पकड़ा रही थी और साथ साथ ये कह रही थी कि वो याद है इस दिन एक जोड़ा देखा था मैंने, कितना खूबसूरत था, वही वाला लेना है। मैंने कह रही थी कि मैंने तुम्हें कभी मना किया है, जो अब मना करूंगा ले लेना। वो इसी तरह की बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारी नहीं इनकी शादी हुई है, जबकि इनकी शादी 10 साल पुरानी थी और हमारी शादी को तो आज तीसरा दिन था। वो लोग तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे और इसकी दूसरी बीवी ऐसे सजी हुई थी जैसे शादी मेरी नहीं उसकी हुई है। बीच में अस्मा ने मुझे कहा कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो। मैंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, दिल नहीं कर रहा। वो फिर से अपनी बातों में मसरूफ हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन दोनों के बीच में एक इजाफी किरदार की तरह बैठी हूँ, पर उठ के जाती तो बुरा लगता। चुप करके सब कुछ सुनते रही, बर्दाश्त करती रही। फिर ज़यान उनके हाफिज के लिए रवाना हो गया और अस्मा वापस आके बैठ गई। अभी उसकी चाय बाकी थी, वो चाय पीने लगी। उसने मुझसे पूछा किसी चीज की कमी तो नहीं महसूस हो रही है, ठीक तो हो, कमरे का सामान पसंद आ गया। मैंने कहा कि यह सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसने कहा कि अच्छा, इससे ज्यादा इसने कोई बात नहीं की और थोड़ी देर बाद वो भी उठ के अपने कमरे में चली गई। मेरे इस घर में सारी बातें नौकरानी से ही होती थी। इसका नाम जुमेदा था। मैंने कहा कि तुम्हारी बड़ी बेगम कहाँ चली गई, तो कहने लगी वो अपने कमरे में चली गई है। वो नाश्ता करने के बाद 2-3 घंटे सो जाती है। दोपहर का खाना वो अपने कमरे में खाती है क्योंकि साहिब दोपहर का खाने के लिए घर नहीं आती। फिर वो शाम को अपने कमरे से निकलती है तो साहिब आते हैं। शाम को चाय एक साथ पीते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों कमरे में चले जाते हैं। फिर वे रात में खाना भी कमरे के अंदर ही खा लेते हैं। बस इसी तरह की रूटीन है जी इस घर की। आपको तो पता है अमीरों के घर की रूटीन ऐसी ही होती है। सब लोग अपने अपने कमरों में ही खाना खाना पसंद करते हैं। आपके लिए भी खाना कमरे में ही भिजवा दिया करूंगी। आप किचन में बैठकर खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, भिजवा दिया करना। इसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगे आप। मैंने कहा कि नहीं। इसने कहा कि आपकी शादी हुई है, लेकिन साहिब आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। आपको अजीब नहीं लग रहा? मैंने कहा कि अजीब तो लग रहा है, लेकिन मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही है। वो अजीब सी आवाज में बोली, जैसे कोई सुन न ले। इसने कहा कि और क्या वजह हो सकती है, अस्मा ही है, वही कह रही होगी कि ना जाने आपके कमरे में एक दफा आपके कमरे में चले गए तो फिर वहाँ से बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं। वो अपने पत्ते खेल रही है और आप चुप करके बैठी हैं। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, वो तो यहाँ की पक्की खिलाड़ी है और मुझे तो अभी आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं। कहने लगे कि अभी 3 दिन नहीं हुए, ये 3 साल नहीं हुए। वो तो अलग बात है, आपको कुछ न कुछ तो करना चाहिए, इस तरह तो आपका घर खराब हो जाएगा। पता तो नहीं इसको अस्मा से कोई मसला था या वो इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे इसके खिलाफ अच्छी तरह भड़का रही थी। पर मुझे याद आ गया कि ये इस घर की नौकर है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम इन बातों में ज्यादा नहीं बोलो, अपना काम करो। मैं अपने कमरे में चली गई और 5 दिन के बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। वो भी अचानक से मैं हैरान रह गई, आकर एक तरफ बैठ गया और कहने लगा कि कैसी हो, सब ठीक है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, ठीक हो, बहुत शुक्रिया आपका। इसने मुझे अजीब नजरों से देखा। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई बात करेगा, मुझे कहेगा मेरे पास आके बैठो, मेरा हाथ थामेगा, लेकिन इसके बाद वो अपने फोन में मसरूफ हो गया। 15 मिनट के बाद क्या था कि हाँ, मुझे याद आया, तुम्हें तो मुंह दिखाई का तोहफा ही नहीं दिया। मेरी दूसरी शादी है, लेकिन तुम्हारी तो पहली है ना। इसने जेब से कोई चीज निकाली। क्या है वो चीज? इतनी छोटी थी कि इसके जेब में थी। इसके जेब में सेट का डिब्बा तो नहीं हो सकता था। इसने एक अंगूठी का डिब्बा निकाला और बिना इसे खोले मेरी तरफ बढ़ा दी और कहा कि वो तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। जब मैंने डिब्बे खोले तो इसमें मुनासिब साइज की छोटी सी सोने की अंगूठी थी। कहने लगा कि पसंद आई। मैंने कहा कि जी बहुत अच्छी है। जाहिर है मेरी जगह कोई भी होता तो और क्या कहता। इतना कह के वो कमरे से बाहर चला गया और फिर से इस घर की वही रूटीन चलने लगी। अब मेरे साथ ऐसे मामला थे कि मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बातें करती और रोमांस करते देखती थी और दूर दूर से देखती रहती थी। कभी वो बाहर बैठ के चाय पी रही होती,
एक दूसरे के मुंह में लत डाल रहे होते। कभी वो हंस रहे होते, कभी खेल रहे होते, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते, तो कभी शॉपिंग में। मैंने कहा कि मैं भी तो बीवी हूँ, मेरे भी तो कोई हक है, शादी कोई एक महीना होने वाला है, मैं भी शॉपिंग का बहाना करती हूँ। मैंने जुलियान से कहा कि मुझे शॉपिंग पे जाना है। कहने लगे कि हाँ जरूर जाओ। अच्छा हाँ, पैसे चाहिए होंगे, रुको मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। उन्होंने एक साथ ही मुझे 15-20 हजार रुपये निकाल कर दे दिए और कहा कि ठीक है चलो। मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप गाड़ी निकाल लें, मैं चादर लेके आती हूँ। तो कहने लगा कि नहीं मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ और जुमेरा को साथ ले जाओ सामान वगैरह उठाने के लिए। मैंने कहा और मैं तो आपके साथ रहना चाह रही थी। तो इसने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, आज मैंने नजमा से वादा किया, आज हम लोगों ने डिनर पे जाना है और तुम पता नहीं वहाँ से कब वापस आओगी। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ ही चले जाओ। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ड्राइवर और जुमेरा के साथ शॉपिंग पे चली गई। मैंने क्या लेना था, कुछ भी नहीं लेना था। मैं तो बहाना कर रही थी कि मेरा शौहर मुझे भी बाहर लेकर जाए, हम अकेले में कोई बात करें। ऐसा नहीं था कि अस्मा इसको मेरे लिए नहीं छोड़ रही थी। बात ऐसी थी कि वो खुद ही मेरे करीब नहीं आना चाहता था, क्योंकि 3 दिन तक अस्मा घर पर नहीं थी, वो अपने माँ बाप के घर गई थी और इसने ये 3 दिन अपने कमरे में गुजार दिए। मेरी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि इतना भी नहीं देखा जितना पहले देखा करता था। मैं जब अपने घर गई तो इन लोगों के लिए काफी सारे तोहफे लेकर आई थी। मैं बाजार से इन्हीं के लिए शॉपिंग करने गई थी। अपने सारे बहनों और अपनी सारी बहनियों के लिए मैंने कुछ न कुछ लिया था। अपनी माँ के पास सामान रखवा दिया कि जब वो आएंगे तो इनको दे दीजिएगा और कहिएगा कि मैं लाई हूँ। माँ भी घर में अकेली बैठी थी, साथ मेरा घर इनके भाई का था, इसलिए वो यहाँ पे आराम से रह सकती थी। कहने लगे कि इतना कुछ लाई है तो इसका मतलब कि खूब नाज नखरे जा रहे हैं। तेरे मुंह दिखाई पर तुझे क्या मिला? जब मैं उठाए जा मेरी अंगूठी दिखाई। कहने लगे कि अपने अकरम ने भी रुबना को इसी साइज की अंगूठी दी थी, 25,000 की तनख्वाह है इसकी और तेरा शौहर तो अरबपति है, इसे कुछ और देना चाहिए था। मैंने कहा कि यही दी है अम्मी, देख लें। आपके सामने झूठ बोल के क्या करूंगी? मैं कहने लगी कि हाँ तो क्यों झूठ बोलेगी, और ये तोहफे इसके पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा कि बस शॉपिंग का कहा था तो उन्होंने पैसे दे दिए। मेरी माँ कहने लगी कि ब्रांड की चीजें होंगी ना। मैंने कहा ब्रांड की चीजें नहीं है, अब एक ब्रांड की चीज लेती तो शायद एक ही चीज आती, लोकल बाजार से ली है। मुझे तो इसी बाजार की समझ आती है। सोचा था कि साथ आएंगे तो किसी मॉल में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अकेले ही भेज दिया। मैंने बातों में अपनी माँ को थोड़ी बहुत बातें बताई, लेकिन अपनी जाती बात नहीं बताई कि वो तो मेरे कमरे में भी नहीं आई। वो कहने लगी कि तू पागल है, इसके पहले बीवी खेल खेल रही है और तो इस खेल में आ रही है। अरे क्या फायदा तेरी खूबसूरती का, कुछ करती क्यों नहीं? मैंने कहा कि क्या करूं? कहने लगी कि मर्द जिस भी उम्र का हो, इसकी कमजोरी औरत ही होती है, और खूबसूरत औरत जो इसकी बीवी है, जिसपे इसका हक है, वो क्यों तेरे से दूर रहेगा? तो किसी दिन मौका देख के अकेले में इसके पास जा, अच्छी तरह सजा और सबसे पहले तो इसकी पसंद का खाना बना। मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तुझे तो खाने की चीजें बनाने आती है ना, सब कुछ तो सिखाया है मैंने तुझे। कोई अच्छी सी चीज बना जो इसको पसंद हो, फिर देख वो कैसे तेरे दीवाना होता है। मैंने कहा कि हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। मैंने जमीरा से पूछ लिया कि बड़े साहब को खाने में क्या पसंद है, तो कहने लगी कि इनको नरगिस को फतेह बड़े पसंद है, उंगलियां चाटते रह जाते हैं वो। लेकिन अस्मा को अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसलिए खाना बनाने के लिए मुझे रखा है। मैंने कहा कि अस्मा को खाना बनाना नहीं आता। इसने कहा कि हाँ इसको खाना बनाना नहीं आता, इसे बिल्कुल कुछ नहीं बनाना आता। वो तो यूँ समझे कि अंडा भी ठीक से नहीं बना सकती। मैंने कहा कि जिंदगी के 10 साल इसने कैसे गुजार लिए और इसके शौहर से कोई शिकायत ही नहीं है। तो इसने कहा कि बस मोहब्बत है ना। मैंने कहा कि मोहब्बत की शादी थी, तो कहने लगी कि नहीं मोहब्बत की शादी नहीं थी, माँ बाप ने करवाई थी, लेकिन साथ रहते हैं तो मोहब्बत हो ही जाती है। मैं दिल में सोच रही थी कि हम भी तो साथ रहते हैं, हमारी तो अभी तक बातचीत भी नहीं हुई, मोहब्बत तो दूर की बात है। मैंने कहा कि आज सालन मैं बनाऊंगी, तो इसने कहा ठीक है, और मैंने नरगिस को फतेह बनाई। हम लोग को ठीक थे, हमने ज्यादा दफा ऐसे कोई डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने एक दफा बनाई थी जब मेरी बहन के ससुराल वाले पहली दफा हमारे घर शादी पे आए थे, तो हमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। बेशक इधर पैसे लेके ही बनाया हो, तब मैंने नरगिस को फतेह बनाई थी इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और वो लोग वहाँ के बहुत खुश हुए थे। मैंने पूरा दिन लगाया नरगिस कुफ्रों पे, बहुत वक्त लगा है।
लेकिन बहुत ही मजे के बने थे। मैंने पहले चेक भी लिए और जुबैदा को भी चखाए। उसने कहा कि बहुत ही कमाल बने हैं। रात के खाने पर जब हम लोग सब साथ बैठे तो जोयान ने जैसे ही देखा कि नरगिस को फिर तो बड़ा खुश हुआ। जुबैदा ने कहा कि वो छोटी दीदी ने बनाए हैं। जैसे ही इसने ऐसा कहा जोयान खामोश हो गया। इसने कहा कि अच्छा, और इसके बाद इसने इस डोंगे को हाथ ही नहीं लगाया। वो कल का बना हुआ पुलाव खाता रहा। आज जो हल्के मसाले की रोटी बनी थी वो खाता रहा, लेकिन नरगिस कोफ्तों को इसने हाथ भी नहीं लगाया। इसने अपनी पसंद का खाना नहीं खाया। इसने खाने की तरफ देखा ही नहीं। आगे मैं बोल पड़ी क्योंकि मैंने तो इसकी बीवी थी। मैंने कहा कि आपने तो बिल्कुल भी नहीं चखा, तो कहने लगा कि वो सब्जी खाने का दिल कर रहा था। आजकल मेरा थोड़ा परहेज चल रहा है तो सब्जी खा ली, और उसके लिए चला नहीं है, कल खा लूंगा। कल भी जब नाश्ते में मैंने गरम करवाई कि चलो इंसान पराठे के साथ ही खा लेता है, तो पराठे के साथ भी इसने इनको हाथ तक नहीं लगाया। और फिर वही हुआ कि मैंने जुबैदा को ही डिब्बे में डाल के दे दिए और वो अपने घर ले गई। मेरा बड़ा दिल जला। अगर थोड़ा सा खा लेते तो क्या हो जाता। इसका मतलब कि वो ये जानबूझकर कर रही थी। ऐसी बात नहीं थी वो जानबूझ के मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा रहा था। मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो भी हैरान रह गई। इसने कहा कि इस मोटी कलोटी औरत ने कैसे इस आदमी को अपने वश में किया हुआ है, जबकि इसके हाथ औलाद भी नहीं है, और हमें ये बताया गया था आदमी औलाद के लिए शादी कर रहा है। ये क्या चाहता है कि औलाद ऊपर से गिर पड़ी थी? ऐसे कैसे चलेगा? तेरी शादी को तो 3 महीने होने वाले हैं। अभी तक तो तुझे खुशखबरी सुना देनी चाहिए थी। ये सब तो अपनी जगह था कि मेरी तरफ देखा नहीं जा रहा था, मगर मेरे हाथ के बने हुए खाने को खाया नहीं जा रहा था। मेरी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। मेरे कमरे में मेरा शौहर नहीं आता था। ये मसला सबसे ज्यादा बड़ा था। मेरे अंदर की औरत ठाटे मारता ही थी। मेरी शादी हो गई थी और मैं ऐसी लड़की के जिसको शादी का शौक था, जो अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। मुझे अपने शौहर की रौजा चाहिए थी, वक्त चाहिए था, जो मुझे नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे फोन करके बार बार पूछती थी क्या हुआ क्या बना, तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं इनको कहती थी कि ना तो कुछ हो रहा है और ना ही कोई फायदा हो रहा है। आपके मंसूबे में काम नहीं आ रहे। वो मुझे कहती थी कि ऐसे करो वैसे करो, वो सिंगार करो वो सिंगार करो। मैंने कोई कमी न छोड़ी। मैं इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई, डिप्रेशन में चली गई कि मैंने इंटरनेट पे अजीब अजीब बातें सर्च करना शुरू कर दी। एक दिन तो मुझे अस्मा पर भी गुस्सा आ गया और मैंने सोच लिया कि आज मैं इस कमरे में जाऊंगी और इसे बोलूंगी कि क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, थोड़ी देर के लिए कहो क्यों नहीं छोड़ देती मेरे शौहर को। मेरा भी तो हक है अपने शौहर पर। किसी से शादी करना और फिर इसका हक अदा न करना, ये भी तो गुनाह है। अपने शौहर से क्यों गुनाह करवाना चाहती हो? मैं इसके कमरे की तरफ जा रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन जैसे ही कमरे की तरफ गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद जोयान अंदर ही था। मुझे लगा कि वो इस टाइम नहीं होगा, वो इस टाइम भी नहीं होता था, पर शायद आया हुआ था। मैं वहां से जाना चाहती थी, पर उनकी बातें ही मैंने ऐसे सुनी कि मैं मजबूरन बातें सुनने पर मजबूर हो गई। अस्मा कह रही थी कि क्यों इस लड़के को लाके रखा है, जब इससे रिश्ता ही नहीं बना रहे हैं। तो इसने कहा कि मैं इससे रिश्ता बनाऊंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो कहने लगी कि अगर मैं ऐसी होती और मुझे इतना ही बुरा लगता तो मैं आपकी शादी ही ना होने देती, लेकिन शादी तो आपकी हुई है। अब वो इस घर में आई, अब आपकी इसकी तरफ कुछ कर्ज है और इसके कुछ हक है जो आपने पूरे करने हैं। जोयान कह रहा था कि अच्छे से रहती है, ख्याल तो करते हैं इसका, जो मांगते हैं दे देते हैं, पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं है। इस बात से अस्मा हंसने लगी। इसने कहा क्या आप हमेशा यही समझते हैं ना कि सब कुछ पैसा ही होता है, लेकिन औरत के लिए कुछ जरूरियात होती हैं। इसे अपने शौहर सिर्फ पैसे के लिए नहीं चाहिए होता। अगर सिर्फ पैसे के लिए चाहिए हो तो फिर इसे ऐसे आदमी को शौहर बनाने की जरूरत नहीं होती। औरत के पास 10 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। मैं हैरान रह गई कि ये वो अपने शौहर को समझा रही थी तो मेरे हुकूक अदा करें और मेरे साथ रहे, लेकिन वो खुद इसकी हर बात का उल्टा जवाब दे रहा था। फिर कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे हुस्न के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता, और वो कितनी खूबसूरत थी ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। अब तो मुझे मेरे शौहर पर गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब कि ये सब कुछ आसमा नहीं करवाती थी, वो खुद ही ऐसा था। अगर ऐसी बात थी तो फिर इसने मुझसे शादी क्यों की थी? खुश रहता ना अपनी बीवी के साथ। मेरी जिंदगी को अपने साथ क्यों बांध लिया था? सारी रात मैं रोती रही, अजीब अजीब बातें सोचती रही। जब मेरी नजर के सामने से एक अजीब सा क्लिप गुजरा, क्योंकि आजकल मैं ऐसी बातों पे सर्च कर रही थी कि आपका शौहर आपकी तरफ ना देखता तो क्या करें,
आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।